channel. Hi, this is Shailesh Vaidya and I welcome you to today's Dhamakedar session where we are going to discuss about the different points on the stress strain diagram in detail. And एक बात मैं बता दूं that I will be taking you microscopically at the bottom. एकदम बेस पे आप लोगों को लेके जाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को पता चलेगा that what is actually your stress strain curve. So very good evening everyone those who are there in the session. जो लोग एक बार जुड़ गए हैं एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर बता दीजिए कि आप लोग आ गए हैं, तो मुझे पता चल जाए कि मेरे कितने बच्चा लोग क्लास के साथ जुड़ गए हैं। वेरी गुड इवनिंग। सो बेसिकली सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पे जो दिख रहा है, देयर आर सम अनाउंसमेंट दैट आई वुड लाइक टू मेक। द फर्स्ट वन इज द अनअकैडमी कॉम्बैट। As you know that Unacademy conducts India's largest scholarship test, इंडिया का सबसे बड़ा scholarship test, where we take your weekly competition test and access your GATE preparation in 60 minutes, where we are giving you the challenging and you can say original questions that are curated by the top educators, and you have to go live with the best, and after the test you will be getting all India live leaderboard and you can also identify and improve your weak areas through the detailed video solution। बात को याद रखिए। So you can enroll for every Sunday Unacademy Combat on you can say 1st, 8th and 15th of August using my code Shailesh V Live. Don't forget to use my code Shailesh V Live. बहुत अच्छे अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए जो मैं आप लोगों को डिटेल में बता देना चाहूंगा। See you can see rank 1 to 3 are getting the complimentary Unacademy Plus subscription for a year. Rank 4 to 10 are getting 75% off on the Unacademy Plus subscription. Rank 11 to 50 are getting you can say 50% off on the Unacademy Plus subscription, and rank 51 to 100 are getting 25% off on the subscription. Okay, देख लीजिए एक बार। And now this is the best team of mechanical engineers on the you can say any learning platform all over India. As you see, we have Praveen Kulkarni sir, Mondal sir, जो 15 प्लस सालों से पढ़ा ही रहे। अब मैं इन लोगों के बारे में क्या ही बताऊं। Kulkarni sir has been teaching from last 20 plus years. So we have Kulkarni sir, we have Mondal sir, we have Negi sir, we have Gill sir, Marut Tiwari sir, Rajiv Singh sir, Akash Tyagi sir and Aditya Gupta sir. One of the best team of the mechanical engineers on Plus. So you can enroll this once again using my code Shailesh V Live. आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दें, इसको अच्छे से मैं आपको लिख के दूंगा कोड को भाई, दैट आकाश त्यागी सर इज स्टार्टिंग थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम 11th of August, मतलब कल दोपहर में 3:30 बजे। तो आ जाओ प्लस पे। And Kulkarni sir is starting fluid mechanics, specifically keeping in mind the syllabus of XC and mechanical both. तो आ जाओ भाई प्लस पे। Now the best team for the double digit rank, the rank improvement batch for specifically GATE 2020 and 2021 50 plus marks scorer, where we have Marut sir, Rajiv Singh sir, Uma sir and Aman sir. So you can enroll once again with the single code. एंड में आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। So ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मैं एंड में बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द डे दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज अबाउट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। कभी सुना व्हाट इज द स्ट्रेस एंड व्हाट इज द स्ट्रेन? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द टर्म्स व्हाट आर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन? एक बार कमेंट करके बता दीजिए भाई जो लोग जुड़ गए हैं। आई वुड लाइक टू सी योर कमेंट्स एवरीवन दोस हु आर देयर इन द सेशन। प्लीज टेल मी हाउ मेनी थिंग्स यू नो अबाउट द डिफरेंट थिंग्स लाइक यू कैन से स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं that stress is defined as the load per unit area. Stress sigma is defined as the load per unit area, but कौन सा load? Whether it is an external load or whether it is an internal resisting load. अबे very good evening and welcome to the session। तो बच्चा लोग मैं आप लोगों को बताऊंगा, let's say this is a body। अच्छा पहले बात करें strength of material की स्टडी कैसे होती है। First of all let's say this is a body and मान लीजिए इसमें है बहुत सारे molecules। कार्बन, पूरी दुनिया कार्बन से बनी हुई है। Every element of the earth is made up of carbon. So what we are doing, what study we are doing, मैं बहुत आगे ले गया, स्ट्रेस पे ले गया आप लोगों को सीधा। अच्छा सबसे पहले बताइए what is the subject that we are studying? सब्जेक्ट का नाम क्या है? I want everyone to comment सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम क्या है? सॉलिड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स से चालू करें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बजाय हम लोग बोलते हैं इसको सॉलिड मैकेनिक्स। सो व्हाट इज सॉलिड एंड व्हाट इज मैकेनिक्स? व्हाट इज सॉलिड? दैट मींस सॉलिड बॉडीज। अभी मैंने जो बनाया इसमें तो बहुत सारा गैप है, but remember this, solid means you can say compact body. Solid means compact body, very good. And mechanics means, mechanics को बोलेंगे हम लोग study of movement or motion of the body. Study of movement or the motion of the body.
स्टडी ऑफ मूवमेंट और द मोशन ऑफ द बॉडी। वेरी गुड अबे। सो यहाँ पे क्या होगा, that as we know that we are studying solid mechanics, that means we are going to study about the movement or motion of, you can say, the compact bodies जिनके molecules के बीच में गैप नहीं होगा। मैंने जो डायग्राम बनाया इसमें तो बहुत गैप है, बट द मॉलिक्यूल्स विल बी वेरी वेरी क्लोजली अपार्ट। तो इनको स्टडी करने के लिए एक बात हमेशा याद रखो, ये मॉलिक्यूल्स ना बहुत ईगो वाले हैं। ये मॉलिक्यूल्स ईगो वाले हैं कि ये हमारे सिस्टम को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। Remember this, the molecules will never leave the system, but only what you can do, you can distort the system, you can damage the system। आप उनको तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, but वो सिस्टम छोड़ के नहीं जाएंगे। So the study that we apply for the study of, you can say, strength of material, the approach that we applied is known as the system approach। अब ये system approach क्या चीज है? किसी भी चीज को पढ़ते हैं ना तो you should know how to study the, you can say, from the beginning। तो what is the system approach? सिस्टम अप्रोच ये बोलता है that the matter or the molecules inside the system remains fixed। आप लोग इनको तोड़ो, मारो, पीटो, बट ये छोड़ के नहीं जाएंगे। The molecules inside the system remains fixed, but the boundary condition may vary। बाउंड्री कंडीशन वेरी कैसी होती है? जस्ट एक मिनट में लिख दूं। The boundary conditions may vary। The boundary conditions may vary। Now what is the meaning of boundary condition? Let's say this is a bar on which I am applying the tensile load। मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं? टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहा हूं। So obviously what will be the case that initially let's say this was the bar, ये बार था, yes or no, और आप लोगों ने इसमें अप्लाई किया यहां से टेंसाइल लोड, let's say of any magnitude p। अब टेंसाइल लोड अप्लाई किया, so obvious सी बात है what will be the case, that will be the elongation of the bar, length बढ़ जाएगी और क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स आएंगे कहां से? ये मॉलिक्यूल्स कहीं से नहीं लाके देने वाला, मॉलिक्यूल्स कहीं से नहीं आने वाले। ये मटेरियल बहुत इगोइस्टिक है। द मॉलिक्यूल्स विल नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड और लीव द सिस्टम। दैट्स व्हाई द क्रॉस सेक्शन विल डिक्रीज। एक तरफ डायमेंशन बढ़ रहा है तो दूसरा डायमेंशन कम होने वाला है। रिमेंबर दिस वेरी वेल, एंड दिस इज गिवन बाय द पॉइजन्स रेशियो। ये जो चीज है ना, मैं आप लोगों को पॉइजन्स रेशियो के फंडा में बताऊंगा। सो द स्टडी दैट वी अप्लाई to study the solid mechanics, the approach that we apply to study the solid mechanics is called the system approach। मेरे साथ बोलेंगे कौन सी approach? System approach। Because the matter inside the system remains fixed, the molecules inside the system remains fixed, but the boundary condition varies। molecules अंदर से बाहर नहीं जाएंगे, ना बाहर से मदद लेने वाला है। ये मटेरियल बहुत इगोइस्टिक है, ये मटेरियल बहुत इगोइस्टिक है। ये खुद टूट जाएगा, खुद मुड़ जाएगा, पर ये किसी की मदद नहीं लेने वाला। सो दिस इज द अप्रोच दैट वी अप्लाई फॉर स्टडीइंग द सॉलिड मैकेनिक्स। बात समझ में आई तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करके बता देना। नाउ व्हाट इज दिस सिस्टम अप्रोच? ये हम लोगों को समझ में आ गया। अब बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था दैट स्ट्रेस इज डिफाइंड एज लोड पर यूनिट एरिया। अब मैंने जैसे आप लोगों को बोल दिया दैट आई एम अप्लाइंग एन एक्सटर्नल लोड ऑफ वैल्यू P, मैग्नीट्यूड P का मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो मैं जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उतना ही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स देंगे। याद रखना, इफ आई एम गिविंग द टेंशन, टेंशन मिलेगा। अगर मैं आपको टेंशन दूंगा तो आप लोग मुझे क्या दोगे? टेंशन दोगे। अगर मैं आप लोगों को कंप्रेशन दूंगा, कंप्रेशन दे नहीं सकता, बट मैं आपको टेंशन दे रहा हूं। टेंशन की वजह से क्या होता है? स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस इंटरनल है कि एक्सटर्नल? सो रिमेंबर दिस, स्ट्रेस इज ऑलवेज द इंटरनली डेवलप्ड। स्ट्रेस जो बात होती है ये इंटरनली बात होती है, एंड प्रेशर इज एक्सटर्नल। स्ट्रेस की जो बात होती है वो अंदर से आता है। व्हाट इज द स्ट्रेस? ये मटेरियल की ताकत है, ये कितना रिस्पांस दे पाता है लोड के अंडर। द स्ट्रेस इज द रिस्पांस गिवन बाय मटेरियल। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? सिंपल लैंग्वेज में, लेमेन्स लैंग्वेज में इसको अपन बोल सकते हैं दिस इज द रिस्पांस गिवन बाय द मटेरियल। मटेरियल के मॉलिक्यूल्स, कार्बन के मॉलिक्यूल्स कितना रिस्पांस दे सकते हैं? सीधी सी बात है, मेटल्स का रिस्पांस ज्यादा है तो उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा स्ट्रेस को ले सकते हैं। जो बच्चा गेट के प्रिपरेशन में स्ट्रेस को बियर कर सकता है वही टॉप रैंक लाता है, मतलब उसके रिस्पांस बहुत अच्छा है। बात समझ में आई? तो आप लोगों को कैसा बनना है? आप लोगों को कौन सा मटेरियल बनना है? मटेरियल जिसका स्ट्रेस को बियर करने की क्षमता ज्यादा है। जितना भी लोड दे दो उसको स्ट्रेस को बियर करने की क्षमता ज्यादा है। सो व्हाट इज स्ट्रेस नाउ? Now whenever you go for the interviews, आप लोग बोलोगे सर stress is the internal resisting force per unit area। What you will be calling this? It is an internally resisting force। ये internally resisting force है जो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स की वजह से सेटअप हो गया। internal resisting force per unit area। एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शन वाला। internal resisting force per unit area is called stress। मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया
कभी भी याद रखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है, बिकॉज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे जाने से पहले ये पता तो होना चाहिए स्ट्रेस क्या है। नाउ द सेकंड डेफिनेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज व्हाट इज स्ट्रेन। कभी नाम सुना स्ट्रेन? एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, सुना ही होगा। ओके, बहुत फेमस नाम है। सो इट इज कॉल्ड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल। कितना मैंने जब लोड डेवलप कराया तो कितना मेरी लेंथ में चेंज आया। अब बात समझो, हमेशा याद रखो, मैं मटेरियल के लिए स्ट्रेन को डेवलप करा सकता हूं। डेवलप मींस आई कैन अप्लाई द स्ट्रेन ऑन टू द बॉडी, आई कैन नॉट, यू कैन से डेवलप द स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होगा वो मैं मेजर कर पाऊंगा, बिकॉज ये इंटरनल है। बुखार आता है तो थर्मोमीटर लगा के व्हाट डू यू मेजर? यू मेजर द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। हाथ लगाते हो ना, टेम्परेचर कैसे मेजर करते हो? थर्मोमीटर से करते हो, तो इंटरनल प्रॉपर्टी मेजर करे हो। सो ऑलवेज रिमेंबर वी कैन डेवलप द स्ट्रेन। लोड देंगे तो उसका एलोंगेशन होगा, वी कैन डेवलप द स्ट्रेन, बट वी कैन मेजर ओनली स्ट्रेस। कंसेप्चुअल चीजें हैं, वेरी वेरी हेल्पफुल अप टू द इंटरव्यूज। Okay, so is this clear? What is the overview of the subject? What is the stress, internal resisting force per unit area? What is the strain, change in length upon original length? And what is the study that we apply in the, you can say, strength of material? The approach that we apply is known as the system approach. The matter inside the system remains fixed and the boundary condition may vary. मजा आया? बता दीजिए एक बार, आर यू गेटिंग द कंसेप्ट्स और नॉट बच्चा लोग? बिकॉज इसके बाद जो मैं आप लोगों को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की तो जड़े देने वाला हूं ना, लाइफ टाइम याद रहेगा। रिमेंबर दिस, आफ्टर दिस यू विल बी रिमेंबरिंग द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द लाइफ टाइम, जिंदगी भर याद रखोगे। बताइए, आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ के सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो अभय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स? आगे बढ़े स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर, बताइए आगे बढ़ा जाए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर। बोलिए, समझ में आया इतना? चलिए, तो आप लोगों को बता ही देते हैं। अब एक बात ऐसी है कि हमारे इंजीनियरिंग लाइफ में मैकेनिकल वालों के लिए, सिविल वालों के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल है दैट इज माइल्ड स्टील। इसको अपन ये बोल सकते हैं कि ये मटेरियल को अपन लोगों ने सबसे ज्यादा यूज किया है। वी हैव द मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एमएस इन आवर लाइफ। ठीक है, तो एमएस क्यों यूज होता है? देयर आर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज एज इट इज यूज्ड इन द स्ट्रक्चर आल्सो। इसको यूज होने के नंबर ऑफ रीजन है, बिकॉज़ इसका अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन कंक्रीट से मैच हो जाता है। देयर आर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, आगे जाते जाते देता जाऊंगा, थोड़ा हिडन कांसेप्ट्स है। सो लेट्स से एक हमारे पास एक बार था, एक मशीन होती है दैट इज कॉल्ड द यूटीएम मशीन, यूनिवर्सली टेस्टिंग मशीन। ठीक है, अब मैं लेके आया सरिया, एक सरिया लेके आया एमएस का। आई ब्रॉट अ बार ऑफ माइल्ड स्टील और उसको लगा दिया यूटीएम मशीन पे। यूटीएम मशीन पे क्यों? क्योंकि मुझे उसकी ताकत देखनी थी कि ये कितना स्ट्रेस ले पाता है। भाई ये बंदा है, ये गेट की एग्जाम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, उसके लिए मुझे इसको देना पड़ेगा स्ट्रेस, और इसको स्ट्रेस देके ही मैं चेक करूंगा कि ये क्या कर सकता है। सो व्हाट डिड आई डू? आई, यू कैन से, इंस्टॉल्ड द बार ऑन द यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, और उस पे लोड अप्लाई किया। अब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन क्या होती है वो तो छोड़ दो, बट इतना समझ लो दैट आई एम अप्लाइंग अ टेंसाइल लोड ऑफ, यू कैन से, पी मैग्नीट्यूड। ओके, ठीक है। अब अंदर क्या है? अब माइक्रो स्ट्रक्चर पे ले जाऊं तो मान लीजिए अंदर इसमें 2 रोज हैं 5-5 मॉलिक्यूल्स की। देयर आर 2 रोज, चलो 3 रोज कर देते हैं, 5-5 मॉलिक्यूल्स की 3 रोज है। बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज आई विल बी गिविंग यू सम प्रॉपर्टीज आल्सो। बेसिकली देयर आर 3 रोज ऑफ 5-5 मॉलिक्यूल्स। एक न्यूमेरिकल वैल्यू समझाने के लिए ली है, ऐसा मान के मत चलना। ओके, आई हैव जस्ट टेकन एन आर्बिट्री वैल्यू। लेट्स से नाउ दिस इज आवर y एक्सिस। y एक्सिस पे क्या होगा? स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगा, क्या दब गया? सॉरी फॉर दिस, अरे अरे अरे, आगे आगे आगे। y एक्सिस पे क्या होगा बताइए? स्ट्रेस होगा कि स्ट्रेन होगा? y एक्सिस पे क्या होगा? स्ट्रेस होगा कि स्ट्रेन होगा? सिग्मा स्ट्रेस होगा y axis पे। and what did I tell you? I called you this, that sigma will be the response, the internal response given by the carbon molecules. Okay, y axis पे stress होगा, x axis पे क्या होगा? There will be strain or elongation, because this is a very basic quantity. हमेशा याद रखो, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो x axis पे आती है, like time, like strain, जिसको अपन लोग इजीली मेजर नहीं मींस डेवलप कर सकते हैं, मतलब इजीली उसको अपन लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज में रख सकते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हुआ क्या?
लगा दिया इसको और लोड लगा दिया इस पे, लोड लगा दिया, लोड लगा दिया, तो इनिशियली इसका जो बिहेवियर बना वो कुछ ऐसा बना। एंड अप टू दिस पॉइंट यू कैन से, मैं पॉइंट्स को मार्क भी करता जाऊंगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर आफ्टर दिस क्लास फॉर ऑल माय बच्चा लोग। लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए and this is our origin. So now what is there up to the point A? Whenever you are stressing the member, उसको stress apply कर रहे हो, tensile apply करो, compressive, but this curve when you are applying the load, तो इसको बोलते हैं loading diagram। क्या बोलेंगे इसको? loading diagram। So you are applying the load और ये तो पहला पॉइंट मिला, that is called the proportional limit, जहां पे stress और strain एकदम proportional दिखते हैं। I'll be writing over here the point A is called the proportional limit. Now what is the definition of this point? That up to this point stress is proportional to strain, okay, ठीक है, but this definition is incomplete because I would like to add one more line that after the removal of the load, अगर मैं लोड को रिमूव कर दूंगा, अगर मैं लोड को रिमूव कर दूंगा तो ये पार्ट वापस अपना शेप एंड साइज रीगेन कर लेगा और इसमें स्ट्रेस की वैल्यू और स्ट्रेन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। रिमेंबर दिस वेरी वेल। इफ आई अनलोड दिस मेंबर, इस मेंबर को मैं फ्री छोड़ दूं तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक अगर मैंने लोड देके इसको छोड़ दिया, देन द बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एंड अप टू दिस पॉइंट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। समझ में आई कथा? समझ में आई बात? सो दिस इज द प्रोपोर्शनल लिमिट। बात करें फॉर डक्टाइल मटेरियल, द प्रोपोर्शनल लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट आर वेरी वेरी नियर, बहुत बाजू में होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड टू बी नियरली कोइंसिडेंट, उनको कोइंसिडेंट माना जाता है। ठीक है, मेरा मन नहीं माना भाई, तोड़ के ही रहना है आप तो पार्ट को, तो और लोड बढ़ाया और लोड बढ़ाया, एज आई एम इंक्रीजिंग द लोड, जैसे मैं लोड बढ़ा रहा हूं रिस्पांस भी बढ़ता जा रहा है, बट द रिस्पांस इज नाउ नॉट प्रोपोर्शनल। ऐसा कुछ कर्व मिल गया, द रिस्पांस इज नॉट प्रोपोर्शनल, दैट मींस द कर्व स्लाइटली डेविएट्स, वो 45 डिग्री के एंगल से थोड़ा डेविएट हो गया, एंड आई गॉट द पॉइंट बी दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट। आई गॉट द पॉइंट बी जिसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। नाउ व्हाट इज द इलास्टिक लिमिट? अप टू दिस actually stress is not proportional to strain, stress strain के proportional नहीं है, but on removal of the load the body will regain its original shape and size, body का unloading diagram वापस जीरो पे आ जाएगा, the body will regain its original shape and size up to the elastic limit। ठीक है, मैं तो नहीं माना, अपने को तो इसको तोड़ के ही छोड़ना है। सो लेट्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लोड, और यहां से मैंने जैसे लोड की वैल्यू बढ़ाई तो यहां पे आप लोगों को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। एक्चुअली एक कर्व को थोड़ा अच्छे से बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, थोड़ा अच्छे से बना दिया जाए। कमेंट्स नहीं आ रहे हैं बच्चा, आपके कमेंट्स क्यों बंद हो गए? ओके, सो दिस विल बी द पॉइंट, इनकी भी कथा सुना देते हैं, दैट इज द यील्ड पॉइंट। सब लोगों ने सुना हुआ है, पता ही नहीं होता है। सो लेट्स से दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी डैश एंड सी, दैट इज द अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट। सी डैश बोले तो अपर यील्ड पॉइंट एंड सी बोले तो लोअर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट कर देता हूं एंड दिस इज लोअर यील्ड पॉइंट। होगा क्या? एज आई एम स्टिल कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द लोड, आई एम स्टिल कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द लोड, ये कार्बन मॉलिक्यूल्स में हड़बड़ाहट होगी, देयर विल बी द स्लिपिंग ऑफ द कार्बन मॉलिक्यूल्स, एंड स्लिपिंग होने की वजह से वो अपनी जगह से खिसक गए, देयर विल बी सडन डिक्रीज इन द रिस्पांस, रिस्पांस तुरंत कम हो जाएगा। रिस्पांस कहां से आ रहा था? अंदर से आ रहा था, जब एक दूसरे ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ था, बट मैंने इतना लोड बढ़ा दिया कि अब इन लोगों को डर लगने लगा कि सर अब तोड़ के ही छोड़ेंगे, तो तोड़ के ही छोड़ने के डर के कारण ये लोग अपनी जगह छोड़ के दूसरे वाले को पकड़ने गए। भाई कहां जा रहा है? बिकॉज ओवरऑल द क्रॉस सेक्शन विल बी इंक्रीजिंग, और अब यहां पे बी तक तो हम लोग शेप को वापस ले रहे थे। अप टू पॉइंट बी वी वर रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, बट बी के बाद यहां पे कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा, कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा। तो मान लीजिए अब आपका जो बार था ये इसकी जगह कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया आप लोगों का परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या हो गया? मान लीजिए कि आप लोगों की लेंथ थी L, इलास्टिक लिमिट तक बढ़ के जा रहा था डेल्टा L, और ये डेल्टा L वापिस रीगेन कर ले रहा था, दिस डेल्टा L वाज रीगेनेबल। बट अगर आप लोग इलास्टिक लिमिट से भी आगे लोड बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा? L प्लस डेल्टा L प्लस x, वेयर x इज द अमाउंट ऑफ परमानेंट स्ट्रेन। इसको कोई नहीं हटा सकता, किसी की ताकत नहीं है, कोई भी नहीं हटा सकता। और अगर मैं मटेरियल को यहां पे छोड़ता हूं, यील्ड पॉइंट पे छोड़ता हूं, तो कुछ ना कुछ मान लीजिए कर्व यहां तक आएगा, कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा इस पॉइंट में। अब क्वेश्चन आता है सर यील्ड पॉइंट 2 क्यों?
बिकॉज यहाँ पे कार्बन स्लिपिंग चालू होता है, यहाँ पे कार्बन स्लिपिंग नियरली आप लोगों को खत्म तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थोड़ा बहुत सेटल होने लगते हैं। तो दिस इज द वैल्यू। अब आप लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे, सर हम लोगों ने पढ़ा यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ वो कौन सी वैल्यू को प्रोपोर्शनेट होती है, अप टू द यू कैन से अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट। बच्चा याद रखो, दिस इज रिलेटेड टू द लोअर यील्ड पॉइंट। हमारी जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, the definition is very clear that this is the minimum value of the stress, this is the minimum value of the stress that is required to cause the permanent deformation। इतना स्ट्रेस तो चाहिए ही आप लोगों को परमानेंट डिफॉर्मेशन करने के लिए, and that's why the yield strength is always corresponding to the lower yield point, not the upper yield point। मार्क कर लो, इंटरव्यू में काम आ सकता है। अब इस पॉइंट के बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कार्बन स्लिपिंग होगी। इस पॉइंट के बाद मैं थोड़ा चौंक गया देख के कि मटेरियल ने रिस्पांस देना ही छोड़ दिया, ये बॉडी तो रिस्पांस देना ही छोड़ देती है। अरे क्या हो जा रहा है भाई, बार बार ये बॉडी तो रिस्पांस देना ही छोड़ दे रही है, और रिस्पांस देना ही छोड़ दिया तो क्या करेंगे, पर मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तो रिस्पांस देना ही छोड़ दिया। सो दिस इज द जोन जहां पे रिस्पांस नहीं आ रहा है, पर मैं आराम से इसको खेलता जा रहा हूं। सर डेल्टा एल इनिशियल पॉइंट गेन आफ्टर यील्ड, ऐसा होता है कि यील्ड पॉइंट के बाद यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये इलास्टोप्लास्टिक जोन होता है, मतलब थोड़ा रीगेन करेगा, थोड़ा रह जाएगा, थोड़ा रीगेन करेगा, थोड़ा रह जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इलास्टोप्लास्टिक। अब है तो आप लोग ये बोल सकते हो कि डेल्टा एल तो हो रहा था, बट उससे भी ज्यादा बढ़ गया जो हम लोग रीगेन नहीं कर सकते। बात समझ में आई? सो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, अब ये जो जोन आया, मेरा थोड़ा दिमाग घूम गया, सर ये मटेरियल आप खींचते जा रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, अंदर से क्या हो गया, इसको भी चिंता हो जाती है ना। ओके, समझ में आया, चिंता हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एज द प्लास्टिक रीजन। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक। कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट लोडिंग कंडीशन। याद रख लो, प्लास्टिक जोन रिस्पांस हो गया जीरो, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस है अंडर कांस्टेंट लोडिंग कंडीशन में, लोड भी नहीं बढ़ा रहा, मस्त मटेरियल का नेकिंग हो रहा है, मस्त मटेरियल का नेकिंग होता जा रहा है। कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अंडर द कांस्टेंट लोडिंग कंडीशन। पर ये मटेरियल भी बहुत इगोइस्टिक था, इतनी देर मेरे को एकदम रिलैक्स कर दिया कि अब कोई टेंशन नहीं है, और इसने सडनली सारे मॉलिक्यूल्स ने हाथ पकड़ लिए, और डी पॉइंट से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग। इनिशिएशन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग, यहां से स्ट्रेन देना हार्ड हो गया, मटेरियल को खींचना हार्ड हो गया। मैं तो आसानी से मस्के की तरह इसको खींचे जा रहा था, ये बढ़ता भी जा रहा था, बट अब स्ट्रेन देना हार्ड हो गया। सो दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग। अब हुआ क्या, ये मॉलिक्यूल्स ने वापस एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। ओके, अब गाना गाने लगे, हम होंगे कामयाब। दैट मींस देयर वर 3 रोज ऑफ यू कैन से 5 मॉलिक्यूल्स। अब मान लो एक रो में 7 मॉलिक्यूल्स आ गए, दूसरे में 8 मॉलिक्यूल्स आ गए। बताइए इनको तोड़ना आसान होगा? विल इट बी इजियर टू ब्रेक? नहीं, क्योंकि ये लोग सब एक हो गए, दे आर यूनाइटेड एंड नाउ देयर ओवरऑल स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज। पहले से भी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। ऐसा कैसे? सर यूनिटी इज स्ट्रेंथ, याद रख लो। सो नाउ द स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज, और ये जो कर्व होगा, रिस्पांस अचानक इतना बढ़ जाएगा, रिस्पांस अचानक इतना बढ़ गया कि पार्ट को तोड़ना ही बहुत मुश्किल हो गया। सो दिस कर्व इज कॉल्ड द स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। में जोन भी बना के दूंगा, चिंता मत करो, पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा। दिस विल बी कॉल्ड द स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, पर मेरे को तो तोड़ना ही था। अब ये जो पॉइंट मिला E, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यस, नेकिंग होगा, उसका एलोंगेट करेगा, मतलब नेकिंग होगा, क्योंकि मेरा लोड तो मैंने अप्लाई किया हुआ है ना। हाँ, लोड मैं बढ़ा नहीं रहा हूं, बट अप्लाई तो रिस्पांस नहीं बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है मैं लोड नहीं बढ़ा रहा हूं, दैट इज द मीनिंग दैट रिस्पांस नहीं दे रहा हूं। मटेरियल, सॉरी, रिस्पांस नहीं दे रहा है। मटेरियल के अंदर कार्बन स्लिपिंग हो रही थी, मॉलिक्यूल्स अपनी नई पोजीशन पे सेटल हो रहे थे, इसलिए वो रिस्पांस नहीं दे रहे थे। वो लोग मौका देख के बैठे थे, ये थोड़ा थोड़ा आराम में आए, फिर इसको मैं पीछे से धक्का देता हूं जबरदस्त का। दैट इज द पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्लास्टिक जोन। देयर विल बी कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन, मटेरियल डिफॉर्म होता जाएगा, डिफॉर्म होता जाएगा, डिफॉर्म होता जाएगा, पर रिस्पांस नहीं मिलेगा। एंड आफ्टर दिस पॉइंट E, नाउ मैंने अगर फिर लोड बढ़ा दिया तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एकदम कम होके द मटेरियल विल फेल, एंड दिस इज द पॉइंट F, जहां पे हो गया स्वाहा, फ्रैक्चर। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस E पॉइंट is called the point of ultimate strength। कुछ चीजें मार्क करके बताना चाहूंगा। I would like to mark some things for you. Let's take this. So this is called the yield strength. This is called the corresponding stress value. The stress value corresponding to the lower yield point is called the yield strength of the material, sigma y. Okay, सर यहाँ पे कौन सी मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी आप लोगों को अल्टीमेट स्ट्रेंथ। पढ़ा ना? यू वुड बी यूजिंग द वर्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। दिस इज द स्ट्रेस वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द दिस पॉइंट।
ओके, दिस इज द स्ट्रेस वैल्यू, आ जा भाई थोड़ा आगे, हाँ, दिस इज द स्ट्रेस वैल्यू corresponding to the maximum strength of the bar, that is called the ultimate strength. बात समझ में आई? समझ में आई? अब जोन्स की बात करें, सर जोन्स क्या होते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले तो बी पॉइंट तक कौन सा जोन होगा, दिस विल बी इलास्टिक जोन। यहां पे जो होगा दिस विल बी इलास्टोप्लास्टिक, थोड़ा रीगेन होगा, थोड़ा परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा होगा सर, इसके बाद होगा आप लोगों का प्लास्टिक, पूरा का पूरा प्योर प्लास्टिक, ठीक है सर। आपने बोल दिया तो मान लेते, नहीं मानो समझो। बाय ग्राफ down after ultimate strength, because the cross section has decreased. Now you see abhay that initially this was the cross section of the bar and now the cross section has changed, length has increased na, that's why. Okay, that means the area has decreased, so obviously the overall response will decrease. And now what you are getting from D point to E point, this is called the strain hardening region. This is called strain hardening region. Bacha log, this point marking is difficult in this software, so sorry for this, but it is actually matching with the point. This is called strain hardening region. And the last one, that is called failure. Okay, let me write everything for you. लिखूंगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। अबे बहुत सारे points clear हुए कि नहीं बताइए। So this is the, you can say, elastic zone. Very good evening, Shreyash. And this one is our elastoplastic. Elastic भी है और plastic भी है. This is elastoplastic. This is complete plastic zone. This is called strain hardening. And आप जो पूछ रहे थे अबे, the last one, the cross section area is decreasing, which is called necking. That's why there will be lesser response given by the. समझ में आया? This will be the necking zone. बात समझ में आई? So this is the stress strain curve. Point A is the proportional limit. Stress is proportional to strain, and on the removal of the load, खाली बोल देना stress is proportional to strain, नहीं चलता है. Stress is proportional to strain, and on the removal of the load, the body regain its original shape and size. Point B is called the elastic limit. Stress is not proportional to strain. ध्यान से देखो, कर्व डेविएट हो गया, कर्व प्रोपोर्शनल नहीं था। प्लास्टिक जोन के बाद क्यों ग्राफ इंक्रीज हुआ, देखो। अब प्लास्टिक जोन में यहां पे कार्बन स्लिपिंग हो रही थी, कार्बन स्लिपिंग होने के बाद अब मटेरियल सेटल हो रहे थे अपनी जगह पे, तो यहाँ पे वो रिस्पांस नहीं दे पा रहे थे। अब मटेरियल पहले क्या थी आपको समझाने के लिए, 5-5 की 3 रो, अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम हो गया। देखो आप लेंथ बढ़ा रहे हो, ये कम होगा क्योंकि मटेरियल बाहर से तो आ नहीं सकता, आप यूं खींच रहे हो, ये और ये कम होगा, मतलब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कम होगा। तो क्या हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8-8 मॉलिक्यूल्स की 2 रो बन गई। अब 8-8 मॉलिक्यूल की 2 रोज बन गई, कम एरियाज में ओवरऑल मॉलिक्यूल बढ़ गए तो रिस्पांस बढ़ेगा। हमेशा याद रखो, रिस्पांस बढ़ेगा, मॉलिक्यूल सेटल हो गए, जो वॉइड्स थे वो फिल हो गए। सो यहाँ पे रिस्पांस बढ़ गया, पर रिस्पांस मैक्सिमम लिमिट तक बना, क्योंकि इनिशियल से रिस्पांस बढ़ जाएगा, ताकत एक लिमिट तक बढ़ेगी, क्योंकि उस गिवन क्रॉस सेक्शन के लिए मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। पर उसके बाद जब आप लोग और लोड वैल्यू बढ़ा दोगे, मटेरियल का क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से वो धीमे धीमे नेक होके फेल हो जाएगा। बात समझ में आई? धीमे धीमे नेक होके वो फेल हो जाएगा, और इसका जो फेलियर होता है ना, कुछ ऐसा होता है, दैट इज कॉल्ड कप एंड कोन फेलियर। ये जो सरिया जो टूटता है ना, दिस इज नॉट परफेक्ट, दिस इज कॉल्ड कप एंड कोन फेलियर। बात समझ में आई? अबे इज द पॉइंट क्लियर? दिस इज कॉल्ड कप एंड कोन फेलियर। प्लस पे आ जाओ, 2 घंटे की क्लास खाली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाऊंगा, 2 घंटे खाली। ओके, 15 अगस्त से आई एम स्टार्टिंग द कोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अल्टीमेट कोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वेयर आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग। The subject in my last 5 years of teaching, I have taught maximum time is strength of material. एक बात हमेशा याद रखना. Okay, is this point clear? So now, what we were discussing, proportional limit हो गया, elastic limit हो गया, upper yield point, lower yield point, carbon slipping होगी, कार्बन स्लिपिंग होगी, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की जगह वहां पे टूटने लगेगी, इस वजह से उनका रिस्पांस घट जाएगा। जब आप लोगों की स्लिपिंग हो रही होती है तो आप लोग रिस्पांस देना कम कर दोगे। उसके बाद आएगा प्लास्टिक जोन, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट लोडिंग कंडीशन, और उसके बाद यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रीअरेंज होने की वजह से, कार्बन मॉलिक्यूल्स रीअरेंज होने की वजह से देयर इज एन इंक्रीज इन द, यू कैन से, स्ट्रेंथ, स्ट्रेस और रिस्पांस बाय द मटेरियल, और इसको कहा जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग। क्योंकि मुझे स्ट्रेन करवाना बहुत हार्ड हो गया, मैं मटेरियल को खींच नहीं पा रहा हूं यार, इसकी ताकत बहुत बढ़ गई है,
इसकी ताकत बहुत बढ़ गई है, जिम में जाने लगा है, जो भी है। एंड आफ्टर दैट वी विल बी हैविंग द नेकिंग जोन बिकॉज क्रॉस सेक्शन कम हो गया और मटेरियल टूट जाएगा। इज दिस क्लियर बच्चा? अब ये कर्व यहां पे खत्म नहीं होता है। The area under the stress strain diagram up to the elastic limit देता है strain energy. The area strain energy per unit volume. The area under the stress strain curve up to the point of fracture gives the toughness per unit volume. Modulus of toughness देता है। बहुत सारी चीजें हैं, ये कर्व यहाँ पे खत्म नहीं होता है। पहली बात तो ये बताइए कितने लोगों को ये चीजें आज पहली बार समझ में आई? ईमानदारी से ये बता दीजिए आप लोगों को कितने लोगों को ये चीजें आज पहली बार डिटेल में समझ में आई? अभय, श्रेयस और मेरे प्यारे बच्चे बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। मजा आया तो भाई बताना भी पड़ता है। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आया। सो मजा आया तो कुछ अनाउंसमेंट्स है अब आप लोगों के लिए। जैसा अब आप लोगों को मैंने बताया था that we are going for the you can say best courses of GATE on any learning platform in all over India. अपने कोर्सेज का कोई कंपैरिजन नहीं है। द टीम दैट वी आर हैविंग इज द बेस्ट टीम। अब आप बात को समझ लीजिए, आप लोगों को इससे रिलेटेड सम्स करने हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक समझने हैं, तो आप लोगों को आना पड़ेगा मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप की क्लासेस में, जहां पे आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे क्लास मिलेगी। दिस इज द कंप्लीट 15 सेशंस यू कैन से ऑफ सीटीक्यू जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ध्यान से देखो, फ्रॉम आई हैड स्टार्टेड फ्रॉम 2 अगस्त और ये मैं 15 अगस्त को पूरा करूंगा। तो आज क्या तारीख है? आज है 10 अगस्त। 10 अगस्त की क्लास। सर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस चालू है, बता दीजिए। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस चालू है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा सकता। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फीलिंग सर हमको क्लासरूम वाली फीलिंग नहीं आ रही है। Most of the students are like, sir, material already deformed and void is formed and now ultimate stress higher than the ultimate stress because material already deformed. Material deform हो गया। पर आप समझो, आपका क्रॉस सेक्शन कम हुआ, आपके मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए। पहले आप लोगों के मॉलिक्यूल्स जो थे वो कंप्लीट एरिया में डिवाइडेड थे, मटेरियल डिफॉर्म हुआ, उसकी लेंथ बढ़ी और उस गिवन क्रॉस सेक्शन में ओवरऑल मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। इस वजह से ओवरऑल उनका रिस्पांस बढ़ गया। बात समझ में आई? ग्राफ को फिर से दिखाइए, स्क्रीनशॉट लेना है। यस, 1 मिनट में आपको एंड में दिखा देता हूं। ओके, 1 मिनट अंत में आपको दिखा देता हूं। सो आप लोग एक बात समझ लीजिए, आप लोगों को प्लस पे नहीं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे पहले आना पड़ेगा टू स्टडी अबाउट यू कैन से न्यूमेरिकल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के साथ कनेक्ट करने का मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है। वहां पे एक सबसे अच्छा फीचर है दैट यू कैन गो फॉर रेज हैंड फीचर। रेज हैंड फीचर का मतलब ये है दैट यू विल बी क्लिकिंग द बटन ऑफ रेज हैंड, मुझे नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग मेरे से बात कर सकते हो, वॉइस टू वॉइस बात कर सकते हो। मेरी स्क्रीन आपको दिखेगी, मैं जो बोल रहा हूं वो आपको सुनाई देगा, आप जो बोल रहे हैं वो मुझे सुनाई देगा। मतलब कंप्लीट क्लासरूम फील। बोले तो एकदम क्लासरूम का मजा इस ऑनलाइन क्लासेस में भी। तो रेज हैंड फीचर का मजा, ऊपर से यहाँ पे थोड़ा क्या डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है, आपको भी पता है। यूट्यूब पे थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है और हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को आप लोगों के आंसर नहीं जान सकते। अब आपकी कमेंट लेट हो रही है, कुछ हो रही है, तो मैं कैसे पता करूंगा? तो वहां पे एक ऑप्शन होता है पोल्स का, वहां पे एक ऑप्शन होता है पोल्स देने का। पोल दूंगा मैं, आप लोग पोल में आंसर करोगे, मुझे पता चल जाएगा कि भाई श्रेयस ने ए आंसर दिया, अभय ने बी आंसर दिया, XYZ स्टूडेंट ने ये आंसर दिया, तो वो मुझे पता चल जाने वाला है। समझ में आया आप लोगों को? ओके, वो मुझे पता चल जाने वाला है। समझ में आई बात? तो वो मुझे पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट्स ने कौन सा आंसर दिया। तो आप लोगों को ये सब चीजें जाननी हो। थैंक यू वेरी मच आशीष, थैंक यू वेरी मच, जान के अच्छा लगा। सो आप लोगों को ये सब चीजें जाननी हो तो बच्चा आ जाइए प्लस के ऊपर। एज यू नो दैट वी हैव नंबर ऑफ बैचेस गोइंग ऑन ओवर, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। एंड आई एम स्टार्टिंग द अल्टीमेट कोर्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑन 15th of August। 15 अगस्त को मैं चालू कर रहा हूं द अल्टीमेट कोर्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑन प्लस। तो प्लस पे आ जाओ यूजिंग माय कोड शैलेश वी लाइव। क्यों मेरा कोड यूज करके आना है? सर फ्री क्लासेस नहीं है, फ्री क्लासेस है, आज आ जाओ 9:30 बजे। ओके, मैं लिंक पोस्ट कर रहा हूं मेरी आईडी से, 2 मिनट रुकिए, मैं कमेंट में लिंक पोस्ट कर रहा हूं। आप मेरा नाम ढूंढ लो, शैलेश वैद्य मेरा नाम, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ढूंढ लो। ओके, मैंने कमेंट भी कर दी है, लिंक आप लोगों के लिए देख लो। ओके, आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। आज 9:30 बजे मेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस की फ्री क्लास है। आई वुड सजेस्ट सब लोग आओ, और अनलॉक करने के लिए, फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए भी मेरा यही कोड यूज करना है, शैलेश वी लाइव। बात समझ में आई? मैंने कमेंट करी है अपनी लिंक, अगर आप लोगों को नहीं दिख रही है, अगर आप लोगों को कमेंट नहीं दिख रहा है मेरा, तो आप लोगों को क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ढूंढना है मेरा नाम शैलेश वैद्य। और आप लोगों को थैंक यू वेरी मच, और अच्छे से भी समझाऊंगा बच्चा। मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 5 साल के करियर में सबसे ज्यादा पढ़ाने वाला सब्जेक्ट है। अब मेरी बात सुन लीजिए, प्लस पे आने का फायदा क्या है?
एट प्रेजेंट मैंने प्लस पे, मेरी बात सुनो मैकेनिकल वालों, खास करके जो मैकेनिकल वाले हैं वो अपना कान खोल के सुन ले, मैंने प्लस पे आप लोगों के लिए पूरा करवा दिया है मेटल कास्टिंग। ओके, यहाँ पे मैंने नहीं डाल पाया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं प्लस पे आप लोगों के लिए पूरा करवा चुका हूं मेटल कास्टिंग। मेटल कास्टिंग पूरा हो गया, कितने घंटे पढ़ाया होगा? आई हैव टॉट मेटल कास्टिंग फॉर 36 आवर्स। एमसीक्यूज ले लिए, कन्वेंशनल क्वेश्चंस ले लिए, एमएसक्यू ले लिए, अरे डेरिवेशंस ले लिए यार। ओके, सारी की सारी चीजें ले ली। ओवरऑल क्लास में 200 से 300 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे रिलेटेड टू मेटल कास्टिंग और न्यूमेरिकल से भरे हुए, न्यूमेरिकल से भरे हुए खुद बना बना के दिए हैं, बच्चों को डीपीपी की जरूरत ही नहीं है। सो आ जाओ प्लस के ऊपर। मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोर्स चालू पड़ा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोर्स चालू पड़ा है, डायनामिक्स अभी चालू किया है, डायनामिक्स इतना अभी चालू किया है, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल में पहुंचे हैं, जिनको आ जाओ न्यूटन से आगे बढ़ के डीएलएम्बर्ट जिनको सीखना है आ जाओ प्लस के ऊपर। ना प्लस पे और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे पहले फ्री क्लासेस में आने का आपको फायदा क्या? व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, एक फीचर है, जैसे मैंने आप लोगों को रेज हैंड बताया, दैट इज गिविंग यू द क्लासरूम फील, वैसा ही वैसा है आस्क अ डाउट फीचर, जहां पे आप लोग अपने डाउट्स की इमेजेस वहां पे पोस्ट कर सकते हो और हम लोग देंगे आपको जवाब। ओके, यू कैन पोस्ट योर डाउट्स और हम लोग देंगे कुछ इस तरीके से, आप लोग इस इमेजेस को डाल सकते हो अपने मोबाइल से अच्छे से क्लिक करके और हम लोग देंगे उसका जवाब। बात समझ में आई? तो हम लोग देने वाले हैं उसका जवाब और आप लोगों को जल्द से जल्द आंसर मिल जाएगा बहुत सारे डाउट्स का। तो अपने आप बहुत सारी चीजों को हमारे ऊपर छोड़ सकते हो, आप लोगों के डाउट सॉल्व हो गए ना, मतलब प्रिपरेशन पे 4 चांद लग गए, ये बात हमेशा याद रखना। एंड आई होप आप लोगों को सेशन मजा आया होगा। एंड व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, भाई प्लस के साथ हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं कैंपस प्लस का, कैंपस प्लेसमेंट का कोर्स, वेयर वी आर प्रोवाइडिंग यू द अचीवर्स बैच और हॉल ऑफ फेम बैच। और लास्ट डेट देख लो, लास्ट डेट है इसकी 11th ऑफ अगस्त। कौन देता है इतना सारा, कौन देता है इतना सारा इतने से पैकेज में? आप लोग फीस कंपेयर करके देख लो और क्वालिटी कंपेयर करके देख लो। सो जो जो लोग प्लस पे आना चाहते हैं, मेरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास समझना चाहते हैं, एक बात देख लो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थियरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ये मैं लेने वाला हूं, याद रखिए। एंड वी हैव द बेस्ट टीम, वी हैव कुलकर्णी सर, वी हैव मंडल सर, वी हैव नेगी सर, वी हैव गिल सर, वी हैव मरुत सर, वी हैव राजीव सिंह सर, वी हैव आदित्य गुप्ता सर, एंड वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से एवरी फील्ड हमारे पास मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट्स के बैच है और उसमें आकाश त्यागी सर भी हैं। तो मैं किसी का भी नाम नहीं भूला हूं, मैं सब लोगों से बहुत यू कैन से बहुत कुछ सीखता हूं, अभी भी आई एम वेरी न्यू और उनसे बहुत सीखता रहता हूं। तो उनसे भी पढ़ना है तो आप लोग प्लस पे आ सकते हैं। सो वंस अगेन यू कैन यूज माय कोड शैलेश वी लाइव। और ये जादूगर है कोड, ये जादूगर कैसे है पता है? जैसे आप ये कोड डालोगे ना तो आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन है वो 32,450 से बदल के 29,205 हो जाएगा। देखिए प्राइस हाइक हो गया, आप लोग देखते रह गए और प्राइस हाइक हो गया। पर ये जादूगर कोड अभी भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, बट आप लोग ईएमआई पे जा सकते हो। आप लोगों के पास भी एक ऑप्शन दे दिया हमने, ईएमआई ले लो, ईएमआई ले लो और प्लस पे आ जाओ। अभी आप लोगों के पास अराउंड 5.5-6 महीने हैं एंड दिस इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम है गेट की प्रिपरेशन के लिए। अगर अभी आप लोग पीछे हट गए ना तो फिर पीछे ही हट जाओगे। एंड अगर आप लोगों को ये लगता है कि भाई हम लोगों को प्लानिंग बनाना नहीं आता है, किस तरीके से प्लान करें, किस तरीके से पढ़े, तो आप लोग ले सकते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये जादू आइकॉनिक में भी चलेगा। सो वंस अगेन यू कैन अप्लाई माय कोड एंड यू विल बी गेटिंग अ डिस्काउंट। वंस अगेन पूरा का पूरा आप लोगों को मिल जाएगा। सो आई थिंक आज मजा तो आया होगा यार। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है, कुछ पॉइंट्स वैसे तो छूटे नहीं है बट बहुत सारी चीजें थी। अल्टीमेट स्ट्रेस इज हायर देन अपर यील्ड पॉइंट, व्हाई? बिकॉज वहां पे जो रिस्पॉन्स मिला ना ये पॉइंट ग्राफ में सबसे ऊपर है। देखो आप समझो, आप क्रॉस सेक्शन से ही समझना पड़ेगा। अब बार बार इसका आंसर मैं यही दूंगा। अब आप इतने क्रॉस सेक्शन में देखो कितने मॉलिक्यूल्स थे और अब यहां पे देखो कि क्रॉस सेक्शन आप लोगों का चेंज हो गया होगा तो मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। अब इतने क्रॉस सेक्शन में आप लोग ज्यादा पैकेज कर दोगे तो वहां पे गैप कम, ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? मटेरियल बढ़ गया, रिस्पांस बढ़ गया। बात समझ में आई? सो दैट इज द रीजन, दिस इज द मैक्सिमम रिस्पांस पॉइंट। साउथ की मूवी देखी ना, लेके आने वाला हूं, तो वीडियो पसंद आया हो तो यार एक बार लाइक कर देना। थोड़ा मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, वेरी सॉरी फॉर दिस। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कल वापस आने वाला हूं 7:30 बजे और कल मैं कुछ और पढ़ाने वाला हूं। So I think this is enough for the day. So for now this is शैलेश वैद्य signing off। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आ जाओ प्लस के ऊपर शैलेश वैद्य के साथ। कोड याद रखिए